Hello everyone, welcome back to my channel Crack Competition. My name is Ayushi Dubey and in today's video we are going to discuss upon British development of education. Okay, कि ब्रिटिश ने क्या क्या डेवलपमेंट किए थे with respect to education sector in India. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. Also do let me know in the comment section whether you are liking the video and do I need certain improvement or you need certain topics. Do let me know in the comment section. Okay, I have also touched upon various topics with respect to polity. The same you can find in the playlist area of polity. Please do check that also. So let's begin. The British development of education. जब ब्रिटिश स्टार्टिंग में आए थे तो पहले 60-70 ईयर्स दे वर नॉट very much interested in the education system of India. But as they started to settle down, they realized that there is an importance for the Indians to know English. There is a need for people to get educated because the labor cost of getting the educated people from British to India is very much. And to reduce that and to cut down that, they need the people to be educated. Okay, so this is how the education system in India by the British started. So uh, at the beginning nothing much were done, but to promote education individual level and personal level people started to do the same, like establishment of Calcutta Madrasa by Warren Hastings in 1781, which focused on the study of Muslim law and its related subject. In 1791, Sanskrit College was established by Jonathan Duncan in Banaras for the study of and for the development of Hindu law and its philosophy. Fort William College, set up by Wellesley in 1800 for the training of civil servants of the company in the language and in the custom which were accustomed to the Indian. So these were the initial phases when education in bits and in bits and par it started to develop. But the main question or the main conflict started between the Orientalist and Anglistic. अब ये क्या है? Basically, the Britishers were divided into two halves. The one which focused on education with respect to Western education, and the second which focused on traditional education. The Orientalists preferred that traditional knowledge should be distributed. They preferred that knowledge should be distributed in the vernacular language, whereas the Anglistic focused that English medium should be used as a medium of instruction. They also said that Western education should be distributed because they felt that Indian learning was far more inferior with respect to Western learning or European learning. So there was this debate which delayed the development of education in India. बहरहाल आपका जो एंग्लिस्टिक थे यानी कि द पीपल हु बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी imparted or distributed or taught in the English medium language basically won. They succeeded and the system of English medium education started from there. So next is Charter Act 1813. ये एक हम्बल बिगनिंग थी, एक छोटी सी शुरुआत थी जब मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके लिए कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ सैंक्शन किया था चार्टर एक्ट 1813 में फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ मॉडर्न साइंस. बट ये जो स्मॉल अमाउंट था 1 लाख रुपीज़ का, ये 1823 तक यानी 10 साल तक इसको सैंक्शन ही नहीं किया गया था, क्योंकि यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि इसको हम जो स्पेंड करेंगे तो उसको किस डायरेक्शन में स्पेंड करेंगे. ट्रेडिशनल में स्पेंड करेंगे कि वेस्टर्न नॉलेज में स्पेंड करेंगे, हम वर्नैक्युलर लैंग्वेज में सिखाएंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाएंगे. तो इसी कन्फ्यूजन में काफ़ी एक लंबा समय हमारा 10, 12, 13 ईयर्स का स्पेंड हो गया.
और इसी बीच में 3 संस्कृत कॉलेज दिल्ली, कलकत्ता एंड आगरा में गवर्नमेंट ने सेटअप भी किया था. आफ्टर दिस Charter Act 1830 which was not a successful act, मैकॉले मिनट 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मैकॉले ने. लॉर्ड मैकॉले वॉज इन द फेवर ऑफ एंग्लिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि इंग्लिश मीडियम के डेवलपमेंट में वो बिलीव करते थे. ही वॉज डिवोटेड टू द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज अलोन. इन्होंने ही बोला था, लॉर्ड मैकॉले ने ही बोला था कि इंडियन लर्निंग वॉज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग. ओके, एंड इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया था विच वॉज डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी. उसमें क्या था कि ओनली अपर क्लास एंड मिडिल क्लास पीपल वर एजुकेटेड, द मासेस द पुअर पीपल वर नॉट एजुकेटेड. तो हम मिडिल क्लास और अपर क्लास को सिखाएंगे इंग्लिश में, एंड वो उनकी प्रॉब्लम होगी कि वो कैसे उस लर्निंग को नीचे की तरफ यानी कि मासेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दिस वाज डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी जो लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में थ्रू मैकॉलेज मिनट इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट इज वुड डिस्पैच 1854. ओके, वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन की स्टडीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया था, एंड स्कूल लेवल पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज का ही इस्तेमाल हो रहा था. वो डिस्पैच में अगेन स्ट्रेस वाज गिवन टू फीमेल एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन. ठीक है, फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया गया था. टीचर्स ट्रेनिंग पे इंटरेस्ट इम्पैक्ट दिया गया था, इम्पोर्टेंस दिया गया था. Education, it also laid down that education imparted in government institutions should be secular. मतलब कि किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए कि हम हिंदू को फेवर कर रहे हैं या मुस्लिम को फेवर कर रहे हैं. द एजुकेशन शुड बी ऑफ सेक्युलर नेचर. तो इसमें कोई भी रिलीजियस बुक्स आपको नहीं पढ़ाई जा रही थी. ओके, तो ये 1854 में वुड डिस्पैच के थ्रू ये डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे. एंड इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा. इसी बीच में 1849 में जेईडी ब्यूटेन ने ब्यूटेन स्कूल कलकत्ता में फॉर्म किया था, विच वॉज अ पावरफुल मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ वुमेन विच अरोज इन 1840s एंड 1850s. ठीक है, आफ्टर दिस आपका वुड डिस्पैच 1854 हमारा आता है हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन. ठीक है, हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन which was set up in 1882. It again lays emphasis on प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. अभी तक क्या यूनिवर्सिटीज एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा था. नाउ थ्रू हंटर कमीशन उन्होंने रिकमेंड किया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे भी आपको फोकस करना है. एंड दे ऑल्सो सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल लेवल बोर्ड फॉर एजुकेशन. उन्होंने सेटअप किया था बोर्ड टू कंट्रोल प्राइमरी एजुकेशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल लेवल, इसीलिए उनके बोर्ड बना दिया गया था. ठीक है, नाउ उन्होंने अटेंशन भी इस कमीशन ने सर्टेन रिकमेंडेशन और अटेंशन भी दिया था, अटेंशन दिलवाया था कि देयर आर इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन, एंड मेड सर्टेन रिकमेंडेशन टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द फीमेल स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हमारा हंटर कमीशन ने एक्सप्लेन और रिकमेंड किया था 1882 में. नाउ वी कम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में. ये राले कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था. राले कमीशन आपका फॉर्म हुआ था 1902 में. इट वॉज सेटअप टू गो इन टू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वर्किंग. अब इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था? उन्होंने बोला था कि जो रिसर्च वर्क है उस पर और अटेंशन देनी चाहिए. उन्होंने जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज कर दिया था. ठीक है, कितने फेलो नॉमिनेटेड होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे,
प्राइवेट कॉलेजेस को अफिलिएशन देना भी स्ट्रिक्ट हो गया था, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें आ गए थे। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ एंड ओवर द एजुकेशन इंक्रीज्ड आफ्टर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। इस रैले रिकमेंडेशन में 5 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था 5 साल के लिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, लॉर्ड कर्जन ने जस्टिफाई भी किया था ग्रेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज इन द नेम ऑफ क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। बट उनका एक्चुअल रीज़न क्या था? टू रिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। ठीक है, वो ये तो बोल रहे थे कि ये कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो, बट उनका जो अल्टीरियर मोटिव था वो ये था कि एजुकेशन को हम रेस्ट्रिक्ट करें और जो हम जिन क्लास को हम पढ़ा लिखा रहे हैं उनकी लॉयल्टी अपने लिए गेन करें, और ताकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ ही लॉयल रहें एंड वो एजुकेशन को मासेस में ना स्प्रेड करें। दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट। After Indian Universities Act 1904, Sadler Commission in 1917 was set up, which focused on the problem faced by Calcutta University. बट जो प्रॉब्लम थी वो केवल कैलकाटा यूनिवर्सिटी तक ही नहीं सीमित थी, इट कवर्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज दैट वाज सेट अप एट द टाइम इन इंडिया। उसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया एट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। दे ऑल्सो टोल्ड एंड लेड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज अ नेसेसरी प्री कंडीशन। द स्कूल कोर्स शुड कवर 12 ईयर्स। 12 साल का स्कूल होना चाहिए, उसके बाद 3 साल की डिग्री होनी चाहिए कॉलेज की, तो प्लस 2 ईयर्स उसका हुआ। यानी प्रिपेयर उस टाइम में उनको कॉलेज जो 12 साल है उसमें आपको यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एजुकेशन नॉट द प्रोवाइड कॉलेज एजुकेशन टू दोज नॉट प्लानिंग टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं उनको कॉलेज एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, फीमेल एजुकेशन, साइंस एंड टेक टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस इंक्रीज कर देना है। ये सारा सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1917 में था इस पर फोकस किया गया था। इन्होंने एक सेपरेट बोर्ड भी सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए सेटअप किया था फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दियर एजुकेशन। ठीक है, उनके एजुकेशन पे, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के एजुकेशन पे कंट्रोल करने के लिए दे हैव ऑल्सो सेटअप अ सेपरेट बोर्ड। आफ्टर दिस द लास्ट फोकस was through Hartog Committee 1925. ओके, 1925 में हार्टॉग कमिटी फॉर्म हुई थी, which again started to focus on quality over quantity. They also laid the emphasis that number of school and colleges in India should increase. It also said, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला था कि केवल डिजर्विंग स्टूडेंट जो हैं, यानी जो स्टूडेंट रियल में इंटरेस्टेड हैं हायर एजुकेशन में, केवल उनको हायर एजुकेशन के लिए जाने दो, बाकी सबको वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ले आ दो, सो दैट दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम कर सकें। तो अब ये तो एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे ब्रिटिश ने थ्रू वेरियस एक्ट, पॉलिसी, कमिटी, कमीशन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के तरह ले आया। बट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी में? तो मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ और एक्सपैंड हुआ। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारा डिक्लाइन हो गया। मास एजुकेशन जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि मास एजुकेशन होना चाहिए, मास एजुकेशन होना चाहिए, बट उसको निगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से जो इलिटरेसी है इंडिया में वो इंक्रीज हो गई। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज दो इट वाज इंट्रोड्यूस, बट इट वाज वेरी वेरी लिमिटेड टू अ लिमिटेड स्ट्राटा ऑफ पीपल। ऑल्सो द सोसाइटी वॉज एंग्लाइज, दैट मीन्स कि एक इंग्लिश सोसाइटी बन गई कि पीपल यूज टू think like English, they used to speak like English, but in their blood they were Indians. ओके, ये एक क्लास, एक तरह का डिविजन क्रिएट किया गया सोसाइटी में थ्रू इंग्लाइज सोसाइटी, यानी कि थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी। सो आई होप दिस
is helpful, this video was helpful to you. If you like this video, please do subscribe to the channel and share the video with your friends. Thank you so much.